शास्त्र खट इंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो कार कृपा कराए। कबीर जो तुह साध पिरम की शीश काट कर जोए। खेलत खेलत हाल कर जो किछ होए ता होए। मैं मूरख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परया रे। दंडौत बंदन अनिक बार सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हाथ। सतनाम धन वाहिगुरु राग कल्याण पातशाही दसवीं। बिन करतार ना कीर्तन मानो आद अजोर अजय अविनाशी। तेह परमेश्वर जानो रहाओ। कहा भयो जो आन जगत में दसक असक हर काए। अधिक परपंच दिखाए सबन कह आपे ब्रह्म कहाए। पंजन गणन समरथ सदा प्रभ सो किम जात गिनायो। ताते सर्व काल के अस को काए बचाए न आयो। कैसे तुहे तार है सुरजड़ आप डुबयो भव सागर। शुद्ध हो काल फासते तब ही गहो शरण जगतागर। शुद्ध हो काल फासते तब ही गहो शरण जगतागर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग परम सम्मानयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी फेसबुक मीडियम के राही
ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ, ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬੇਜਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੜ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਚੇਤਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਭੇਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਵਾਹਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਉਡਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਵਾਹਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਉਡਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਮਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਹੂੰ, ਆਣ ਦੇਵ, ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਉ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਹੂੰ, ਆਣ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਹੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਮਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਨਰ ਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਨਰ ਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਉ ਲੱਗਾ ਨਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਉ ਲੱਗਾ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਦੇ, ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ, ਜਲ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ, ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ, ਜਲ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਤੇ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਬ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਗਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,
किते पिपलां दी पूजा करते सन, किते होर इस तरह के जिहड़े परमात्मा दे वल्लों बनाई हुई जिहड़ियां वस्तुआं उन्हां दी जिहड़ी पूजा सीगी उन्हां दे विच वो रुझ गए सन। ते इत्थे अज दे शब्द दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे बिन करतार, कहंदे ये जिहड़ियां चीज़ां कोई सूरज की पूजा कर रहा, कोई चंद की, एक असीं शब्द पढ़ते हैं कहंदे दिन जिहड़ा है वो भी खत्म होने वाला है। गुरु नानक साहब का शब्द है। जिहड़ा सूरज है वो भी कहंदे एक दिन कहंदे खत्म हो जाएगा। जिहड़ा कहंदे चंद्रमा वो भी कहंदे एक दिन खत्म हो जाएगा। जे नहीं खत्म होवेगा ते परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा वो हमेशा रहन वाला। असीं वचन पढ़दे हां, दिन रब चले निसस चले, तारिका लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। जे रहन वाला है ते कल्ला ही परिपूर्ण परमात्मा रहन वाला है। बाकी आ जिहड़े दिन है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे है, ये सारे ही कहते बिनसन वाले हैं। एक ना एक दिन इन्हां दी जिहड़ी मौत है वो हो जानी है। दिन रब चले निसस चले, तारिका लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। एक होर असी की करते हाँ, असी घर दे विच पदार्थ इकट्ठे कर लेंदे हाँ, घर दे विच पदार्थ इकट्ठे कर लेंदे हाँ। असी मान लेंदे हाँ कि ये पदार्थ ही साडे वास्ते सब कुछ है। इन्हां पदार्थां दे करके ही असी हाँ, परंतु असी जिस परिपूर्ण परमात्मा दे वल्लों ये पदार्थ दिते हुए हैं ना, वो पदार्थां दे नाल जुड़ गए ते लेकिन उस परमात्मा दे नाल नहीं जुड़े। इत्थे मैं एक बेनती करा, जदों तुसी करतार नूं छड्ड के ओदी किरतम दी पूजा दे नाल जुड़ोगे, उस समय तुसी संसार दे जाल दे विच ही फस के रह जाओगे। जदों तुसी किरतम दी पूजा नूं छड्ड के करतार दे नाल जुड़ोगे, उदों तुसी निरंकार दे घर दे विच तुसी प्रवान हो जाओगे। मैं फिर गल दोहरावां, जदों असी करतार दी पूजा छड्ड के उहदियां बनाईयां होईयां वस्तुआं किरतम दे नाल जुड़ जावांगे ते करतार नूं विचों विसार देंगे, उस समय साडी पहुंच सिर्फ ते सिर्फ संसार दे जाल तक ही, संसार तक ही होवेगी। संसार दे जाल दे विच ही फस के रह जावांगे। ते जदों असी किरतम दी पूजा छड्ड के उस करतार तक परिपूर्ण परमात्मा की पूजा करांगे ते असी उस समय निरंकार दे घर दे विच प्रवान हो जावांगे। मैं एक प्रमाण दिया, महाराज कहते तेरे कोल सोना भी बहुत है, तेरे कोल चांदी भी बहुत है, तेरे कोल मोती ते मानक, ये सारे पदार्थ कहते तेनू परमात्मा ने दिते हुए है। कहते ये तेनू पता है कि दिते हुए परिपूर्ण परमात्मा ने। मेरे एक ना बार बार मेरे अंदर एक प्रमाण आ रहा, बड़ा प्यारा प्रमाण असीं पढ़दे हां, दात प्यारी विसरिया दाता। असीं दातां दे नाल ते प्यार कर लिया, पर जिन्ने दातां दित्तियां असीं उन्नू भुल गए। इसलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहिब दे विच एक बड़ी प्यारी पंक्ति को श्लोक है उन्हां दा। महाराज फरमांदे सिख दे हालात की है, अज दे मनुख दे हालात की है। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुवाए। देनहार जिस परमात्मा ने ये सारियां वस्तुआं दित्तियां उन्नू ते कहंदे छड्ड दिता। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुवाए। ते महाराज कहते नानक कबहू ना सीजी, तू इस तरीके दे नाल इस संसार दे विच कहते सफल नहीं होवेगा। नानक कबहू ना सीजी, बिन नामे पत जाए। ते इस संसार तो कहते बिना इज्जत तो तू कहते जावेगा, इज्जत दे नाल नहीं जावेगा। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुवाए। नानक कहू न सीजी, नानक कहू न सीजी, बिन नामे पत जाए। ते महाराज फरमांदे तू इस संसार दियां वस्तुआं नूं छड्ड दे। गुरु अमरदास जी महाराज भी ना सानू हलूणा दिंदे। वो महाराज कहंदे इह कुटंब तू जे देखदा, जो कुछ तू अपने आले दुआले कहंदे देख रहा है, यह कुटंब तू जे देखदा,
चले नाही तेरे नाले, चले नाही तेरे नाले तिस नाल क्यों चित लाई है। ये जिहड़ा चित सी ना, ये चित ते तू लाउणा सी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल। ते एक ना बाबा कबीर जी दा बड़ा प्यारा बचन चेते आ गया। बाबा कबीर जी कहंदे चाले थे हर मिलन को, मैं चलिया सी कहंदे रब नूं मिलन वास्ते, कहंदे चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को करतार को चलिया सी, बीचे अटक्यो रस्ते विच ही कहंदे मैं अटक के कहंदे रह गया। चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो रस्ते दे विच ही मैं अटक के रह गया। ते एक विद्वान ने ना इहदे बड़े प्यारे अर्थ कीते। ਉਹ अर्थ की कीते, कहंदा विच किथे किथे मैं अटक के रह गया। ਇਹਦਾ जवाब धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे पहले प्यार लगा थन दुध, इत्थे ही कहंदे अटक के रह गया। तो कहंदे पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खान पियन की धात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें सांझ हुआ करवास, अठवें क्रोध हुआ तर नास, नौवें धौले ऊबे सा, दसवें दत्ता हुआ सुआ, दसवें दत्ता हुआ सुआ, गैस गीत पुकारी धा। मैं ये अर्थ कर दिया। कहते चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो रस्ते दे विच ही कहते अटक के रह गया। रस्ते दे अटक गया। पहले प्यार लगा थन दुध, बच्चा पैदा होया ओदा प्यार जिहड़ा सी वो मां दे दुध नाल लगा। इसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते जे तू प्यार ही लाउणा सी ना ते प्यार तू लाउणा सी परमात्मा दे नाल। महाराज कहते साच कहो सुन लिहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कीता ना उन्हें ही परिपूर्ण परमात्मा दी कहते प्राप्ति कीती। सच कहो सुन लिहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पहले प्यार लगा थन दुध, कहते थोड़ा जिहा वड्डा होया ते दूजे माए बाप की सुध। ये सारी कीर्तन दी पूजा हो रही है, ये सारा कीर्तन दे नाल जुड़ रहा। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, थोड़ा जिहा वड्डा हो गया ते मां ते बाप की पहचान हो गई उहनूं। तीजे भैया भाभी बेब, तीजी अवस्था दे विच पहुंचिया भरा ते भरजाइयां ते भैणां दे नाल उहदा संबंध पैदा हो गया। चौथे प्यार उपन्नी खेड़, चौथी अवस्था दे विच पहुंचिया जदों उहदे पैरां दे विच उहदियां लत्तां दे विच जान आई ना ते फिर घर तो बाहर खेलना शुरू कर दिता। हुण उहने कह दिता मां मैं तेरे नाल नहीं खेडना, मां मैं अपने भरावां दे नाल नहीं खेडना, मां मैं भैन नाल नहीं खेडना, मैं ते घर तो बाहर जिहड़े साथी लोग है उन्हां दे नाल खेडना। चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पीन की धात ते थोड़ा जिहा होर वड्डा होया कि जदों बाजार जाना शुरू कीता ते बाजार दे विच पईयां हर वस्तुआं नूं उहने खाण दी कोशिश कीती। ये भी नहीं सोचिया कि जिन्हों महाराज कहते जित खादे तन पीड़िए वो मैं ना खावा, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। बाबा होर खाना खुशी खुआर, वो भी चीज़ां दे नाल। पंजवें खान पीन की धात, छेवें काम न पुछे जात। ते जदों थोड़ा जिहा होर वड्डा होया जवान होया शरीर दे अंदर रस भरिया, छेवें काम न पुछे जात। ते उहनूं ये नहीं पता लगा कि गुआंढियां दी बच्ची जिहड़ी है वो मेरी भैन लगती है। छेवें काम न पुछे जात, हर औरत नूं ओ काम दी अवस्था दे नाल, हर स्त्री नूं ओ काम दी अवस्था दे नाल देखदा। मैं फिर पूरा शब्द लवां। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियन की धात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें सांझ किया करवास, अठवें क्रोध हुआ ता नास। सतवीं अवस्था दे विच घरदियां ने विआह करता, अठवें क्रोध हुआ तन नास। अठवीं अवस्था दे विच पहुंचिया क्रोध हुआ तन नास। नाल दे गुआंढियां दा बच्चा अमेरिका पहुंच गया ते अपना किसे पासे लग नहीं सकिया। अठवें क्रोध हुआ तन नास ते गुस्से दे विच अपने तन नूं ही नाश कर रहा।
जिन्हों महाराज कहते काम क्रोध काया तू गाले, जो कंचन सुहागा ढाले। 8वें क्रोध हुआ तन नास, 9वें धौड़े ऊबे सा, ते 90 साल की उम्र हुई, खिच खिच के साह लैन लग गया। 9वें धौड़े ऊबे सा, 10वें दद्दा हुआ सिया। ये सारा शब्द पढ़ के देखो किरतम दे नाल ही जुड़ गया। किरतम नूं छड्ड के करतार दे नाल जुड़न दा उन्होंने मौका ही नहीं मिलिया। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाउंदे बिन करतार ना किरतम मानो। मैं बेनती कर रहा सी, तेनू सोना भी दिता, तेनू चांदी भी दिती, तेनू मोती भी दिते, तेनू मानक भी दिते, हीरे जवाहरात भी दिते। ये सारा कुछ कहते परिपूर्ण परमात्मा ने दिता, परंतु तेनू घर भी दिता, सब कुछ दिता। तू इन्हां ही अपनी रास पूंजी जिहड़ी ओ समझ के बैठ गया। कहते इन्हां दे नाल ऐसा जुड़िया भी उस परमात्मा दे कोल कदी बैठिया नहीं। उन्हां दा वचन है सोना रूपा रंगुला, मोती ते मानक जियो। सोना रूपा रंगुला, मोती ते मानक जियो, से वस्तु सह दित्तियां। आ वस्तुआं कहते तेनू सह दित्तियां, उस परिपूर्ण परमात्मा ने दित्तियां। से वस्तु सह दित्तियां, मैं तिनसियों लाया चित जियो। मैं उहदे नाल ही अपना कहते चित जिहड़ा ना वो ला के बैठ गया। मंदिर मिट्टी संदड़े, मंदिर मिट्टी संदड़े, पत्थर कीते रास जियो। मिट्टी के मंदिर के घर इन्हों ही मैं अपना कहते सारा कुछ समझ के बैठ गया। और इन्नी ढोली भुलीयस, मैं इन्हां दे विच ही कहते भुल गया। वो परमात्मा नूं कहते मैं भुल गया। और इन्नी ढोली भुलीयस इस कंत ना बैठी पास जियो। उस परिपूर्ण परमात्मा दे कोल मैं कदी नहीं कहते बैठ सकिया। वो परिपूर्ण परमात्मा जिहदे बारे बाबा नामदेव जी कहते ये जिहड़ियां वस्तुआं दे नाल तू जुड़िया ना, कहते ये वस्तुआं ते कहते अज बणियां, लेकिन वो परिपूर्ण परमात्मा इन्हां वस्तुआं तो पता नहीं किन्ने कु सालां पहलां दा बनिया होया है। कहते ਉਹਦੇ बारे कोई गिनती नहीं। असी बचन पढ़ते हाँ पहल पुरिये पुंडरक बना, ताजे हंसा सगले जना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंक्ति आउंदी है बाबा नामदेव जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंक्ति। वैसे ये सारा शब्द ना सृष्टि की रचना के बारे है। पहल पुरिये पुंडरक बना, ताजे ता चे हंसा सगले जना। इस पंक्ति आउंदी है पहलपुर साबिरा, पहलपुर साबिरा। पहला वो परिपूर्ण परमात्मा अथोन पुरसा दमरा। पुरसा दमरा मैंने ओदे वल्लों बनाइया हुई वस्तुआं आ कह लीए कुदरत माया कह लीए। कहते परमात्मा बहुत देर का है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ ਤਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਨਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ ਤਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ना धरती सी ना गगन सी, लेकिन उस परिपूर्ण परमात्मा का हुक्म जिहड़ा वो चल रहा सी। अरबद नरबद धुंदू घारा तरण न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रहन चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा। इसे लिए तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज फरमाउंदे बिन करतार ना किरतम मानो। उस करतार की कहते पूजा कर, उस करतार की पूजा तो बगैर। देखो महाराज गुरु बाबा कबीर जी का एक बड़ा प्यारा वचन। बाबा कबीर जी कहते दुनिया के मैं हालात वेखे। कहते पहला गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द ले रही है। महाराज कहते जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथी होवे सेव। उन्हां दी सेवा जिहड़ी कहते व्यर्थ कहते चली जाती। जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथी होवे सेव। कहते जो पाथर के पाई पाई, ताकि काल अजाई जाए। जेड़े कहते पत्थरां दे पैरां दे विच कहते जा करके मथे टेकदे है ना, जो पाथर की पाई पाई ताके काल अजाई जाए। उन्हां दी काल कीती कमाई कहते सारी व्यर्थ कहते चली जाती। ते बाबा कबीर जी फरमाते बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर न्याई। कोयले जारे कोयले गाड़े, तेरी गत दहोना
भाई इत्थे मैनूं ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तीन जड़े महाराज ने परचा शब्द का ते दीदार खालसे का, पूजा अकाल की। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते सिखा जे पूजा करनी ना, पूजा कीचे नाम ध्याइए, पूजा कीचे नाम ध्याइए। गुरु नानक साहब जी महाराज का वचन है, महाराज कहते तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उसा होए, कहते तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उसा होए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कहते पूजा कीचे नाम ध्याइए बिन नावे पूजना होए, तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उसा होए। करनी कुंगू जे रले कट अंतर पूजा होए, करनी कुंगू जे रले कट अंतर पूजा होए। ते महाराज कहते पूजा कीचे नाम ध्याइए बिन नामे पूजना होए, नाम तो बगैर कहते तू पूजा नहीं कहते किसी दी कर सकता। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिन करतार ना कीर्तन मानो। और एक सवैया लै करके धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु अर्जुन देव जी महाराज सानू 52 अखरी दे विच एक बड़ा प्यारा शब्द समझाते। महाराज कहते एक दा आसरा लै तर जीए ने एक टेक तू, केड़ा एक जिन्हों गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब दे विच उन्होंने एक लिख दिता, ओंकार तो पहला एक लिख दिता, उस एक दे नाल कहते जुड़ तर जीए ने एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याइए कारज आवे रास। तन तन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाउंदे कहते मैं देखिया, कहते वैसे तो गुरु नानक देव जी की सिफत दे सवैया है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज का सवैये मुख वाक पातशाही पहली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज फरमाउंदे कहते ब्रह्मा देखिया मैं शिव देखिया मैं मुनीसर देखे, ये सारे ही ते कहते वो परमात्मा नूं कहते ध्यानदे पए आ। कहते ते असीं जपजी साहब दे विच सोदर दी पौड़ी पढ़दे ना ते महाराज उत्थे भी कहते हैं कि ये सारे ही कहते उस परमात्मा नूं गावे इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावे सिद्ध समाधि, सारे कहते जिन्ने ये है ये सारे उस परमात्मा नूं ध्यारे। कहते जदों ये सारे परमात्मा नूं ध्यारे है ते तू कहते इन्हां नूं क्यों ध्यारिया, तू इन्हां नूं विचों कहते एक पासे रख ते सीधा परिपूर्ण परमात्मा नाल जुड़। धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज का सवैया कहते मैं ब्रह्मा देखिया मैं शिव देखिया मैं मुनीसर, मुनीसर जेड़े कहते मुनि देवते मुनीसर जेड़े मुखी है कहते इन्हां दे, ये सारे कहते उस परमात्मा नूं ध्यानदे पए आ। फिर मैं कहते इंद्र नूं देखिया मुन इंद्र नूं देखिया, ये जेड़े मुनि देवते जो भी हैं इन्हां नूं देखिया, ये सारे कहते धरती ते दौड़दे पए आ, कदी उधर जा रहे हैं कदी उधर जा रहे हैं, काहदे वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करने वास्ते। कहते सिद्ध देखे मनुख देखे देव देखे दानव देखे, ये सारे कुछ इन्होंने एक तिल भी कहते उस परमात्मा तक इन्हां दी कहते पहुंच नहीं हुई। कहते फिर अगे महाराज ना बड़ा प्यारा वचन कहते तिसे त्याग आन को जाचे मुख मुंह दंद, आ जेड़े तेरे दंद है मुख दंत रसन सगल का सजावत। कहते तू परमात्मा नूं छड्ड के इन्हां दी पूजा करदा पिया, इन्हां नूं जपदा पिया, कहते इन्हां नूं कहते जपण दे नाल तेरा मूंह तेरे दंद तेरी जीभ सब कुछ तेरा कहते घस जावेगा। ते कहते एक गल सुन मैं तेनू गुरु नानक दा फलसफा दसन लगा। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे रेवन मूड़ सिमर सुखदाता नानक दास तुझे समझावत। वो सवैया है धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज का ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत, रसक रसक ठाकुर गुण गावत। ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख धरण गगन आवत फुन जावत, आवत फुन धावत। कहते जेड़े इंद्र मुनिंदर ये गोरख जिन्ने है ये सारे दौड़ते फिरते हैं धरती ते, कहते इधर ते उधर जा रहे हैं। सिद्ध मनुख देव और दानव, सिद्ध जिन्हें सिद्धियां प्राप्त कीतियां मनुख देवते ते दैत, देव और दानत एक तिल
दिल ताको मर्म न पावत, इन्हां ने कहते थोड़ा जिहा भी इन्हां दी पहुंच ना परमात्मा तक नहीं हुई। फिर अगे महाराज फरमांदे प्रह प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती, हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाचै, तिसे त्याग आन को जाचै। उस परमात्मा नूं छड्ड के इन्हां दे पिछे कहंदे लगा होया आन को जाचै, मुख दंत रसन सगल कस जावत। अगे महाराज कहंदे रे मन मूड़ सिमर सुख दाता, ओ मूर्ख मना कहंदे उस परमात्मा नूं सिमरना कर। रे मन मूड़ सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत, बिन करतार ना कीर्तम मानो, बिन करतार ना कीर्तम मानो। फिर अगे कहंदे किन्नू मनो, गुरु गोबिंद सिंह जी सानू दसदे है कहंदे किन्नू मनीए, कहंदे उन्नू मन आद अजोन अजै अविनाशी तेह परमेश्वर जान। ओ जिहड़ा कहंदे जिहड़ा सारे संसार दा कहंदे मुੱਢ है, बड़े ध्यान नाल सुनियो, संसार दा मुੱਢ परमात्मा है, लेकिन परमात्मा दा मुੱਢ कोई नहीं है। परमात्मा दा मुੱਢ कोई नहीं है, क्योंकि बाणी कहती पई है, गुरु नानक साहब कहते पे है आपीने आप साजियो। जे ओदा कोई मुੱਢ हुंदा ते आप दी थां ते कुछ होर होना सी कि फलाने ने परमात्मा नूं साजिया। लेकिन गुरु नानक साहब जी सानू समझाते आसा की वार दे विच आपीने आप साजियो। पहला उन्हें अपने आप को साजिया, किसी की लोड़ नहीं पई। आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। वो आद है, वो अजून है। अजून शब्द सिर्फ ते सिर्फ दसम ग्रंथ में वरतिया गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच अजून की थां ते अजूनी शब्द वरतिया गया। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ। ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ परमात्मा ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। परमात्मा ना ते ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ परमात्मा ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ परमात्मा ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਦ ਅਜੂਨ ਅਜੈ, परमात्मा कोई नहीं जित सकता। आद अजोन अजय अविनाशी, दुनिया की हर चीज तो विनाश हो सकती है, लेकिन वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा वो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। आद अजोन अजय अविनाशी, वो कहते विनाश तो रहत है। तेह परमेश्वर जानो, उन्नू कहते तू परमात्मा मन, ओही कहते परिपूर्ण परमात्मा। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस परमात्मा की गल कर रहे, जिन्हों महाराज कहते जे तू पूजा करनी है तो करतार की कर। वो करतार जिहड़ा आद है, जिहड़ा अजून है, जिन्हों कोई जित नहीं सकता, जिहड़ा अविनाशी है। तेह परमेश्वर जानो रहाओ। अगे महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगलियां पंक्तियां दे विच फरमाउंदे कहा भैरो जो आन जगत में दसक असर हर काए। कहंदे की होया, कहंदे की होया, कहंदे कहा भैरो की होया, कहंदे जो आन जगत में तू संसार दे विच आ करके कहंदे दसक असक हर असर हर काए। दस तू कहते दैंतां नूं मार दिता। इत्थे धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विष्णु जी की गल करते हैं, क्योंकि विष्णु के 10 अवतार जिहड़े मुख होए है। वैसे उहदे 24 अवतारां का जिक्र हो रहा और 23 अवतार उहदे हो चुके हैं। इन्हां 23 अवतारां दे विचों 10 अवतार जिहड़े वो मुख मन्ने गए हैं। 10 अवतार जिहड़े है वो मुख मन्ने गए विष्णु दे। कहंदे विष्णु जी की होया, कहंदे तुसी आ करके कहंदे 10 दैंतां नूं कहंदे अपने अपने एक एक अवतार दे विच तुसी 10 दैंतां नूं कहंदे मार दिता।
अधिक परपंच दिखाए सबन कह। कहते तुसी लोकां नूं पखंड दिखाया, अधिक परपंच दिखाए सबन कह, अब यह ब्रह्म कहाए। मेरी एक गल मैं ते बेनती करना चाहुंदा, ना ते दसम ग्रंथ जी की बाणी किसी अवतार के खिलाफ है, ना ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी किसी अवतार के खिलाफ। सिर्फ ते सिर्फ अगर किसी ने अगर कोई अपने सिद्धांत तो थिड़किया ते गुरु साहिब ने उन्होंने सिद्धांत के ऊपर क्या भी तेरा ये सिद्धांत सी, परंतु तू एक कारण तू एक काम करन लग पिया। महाराज ने वो सिद्धांत के ऊपर थिड़के हुए के ऊपर जी चोट है ना वो जरूर मारी। महाराज इतने फरमाते अधिक परपंच दिखाए सबन कह, आप यह ब्रह्म कहाए। तुसी आप ही कहते रब का रूप कहते बन के कहते बैठ गए हो। मैं इतने एक अकाल उस्ताद की बाणी के विचों मैं दो कु पंक्तियां आप नाल साझियां करा। महाराज फरमाते धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते महादेव अच्युत कहवायो। महादेव ने अपने आप को कहाया कि मैं अच्युत हाँ, अच्युत मैं खत्म नहीं होने वाला हाँ। महादेव अच्युत कहवायो, विष्णु आप ही को ठहरायो। ते विष्णु ने अपने आप को कहते कह दिता, विष्णु ने अपने आप को कह दिता कि मैं ही हाँ, विष्णु आप ही को ठहरायो। फिर अगे कहते ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना। ते ब्रह्मा जी जड़े आए सी उन्होंने अपने आप को कहता कि मैं ही सब कुछ हाँ, पार ब्रह्म बखाना। प्रभ को प्रभ न किन्हू जाना, परमात्मा नू परमात्मा करके किसी ने नहीं कहते जानिया, अपनी अपनी ही उन्होंने कहते पूजा कराई। ते मैं कई बार बेनती करता हूँ ये जड़े देवी देवते आए तकरीबन 223 को अवतार जेडे हैं ये हुए हैं और 33 करोड़ जेडे देवी देवते हैं। इन्हां सारियां ने अपनी ही पूजा अपने ही पैरों के नाल जोड़िया। जब कि ये परमात्मा के घर चो शक्तियां लैके आए सन, रिद्धियां सिद्धियां लैके आए सन कि असी धरती ते जा करके रूहे जमीन ते जा करके लुकाई का भला करांगे, लुकाई नूं तेरे नाम दे नाल जोड़ांगे। इसे लिए धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा आगमन है ना वो कलयुग दे विच होया। कलयुग दे विच होण दा इहो ही कारण सी क्योंकि पहला सतयुग सी, फिर त्रेता द्वापर सी, फिर त्रेता युग सी। इन्हां तिन्नां युगां दे विच इन्हां देवी ते देवतियां ते अवतारां ने लुकाई नूं की कीता, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी कहते अधिक परपंच दिखाए सबन कह। तुसी कहते लोकां नूं कर्म कांडां ते पखंडां दे विच कहते पाया, अधिक परपंच दिखाए सबन कह। ते तुसी हर दे विच किते राम नूं तुसी भगवान कह दिता, किते तुसी श्री कृष्ण जी नूं भगवान कह दिता, किते तुसी ब्रह्मा नूं कहते पार ब्रह्म जा सब कुछ कह दिता। महाराज गुरु गोबिंद सिंह फरमांदे अधिक परपंच दिखाए सबन कह, आपे ब्रह्म कहाए। आपां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वचन लिया सी अकाल पुस्तक चो। महाराज फरमांदे महादेव अच्युत कहवायो, महादेव अच्युत कहवायो, विष्णु आप ही को ठहरायो, विष्णु आप ही को ठहरायो। ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना, प्रभ को प्रभ किन्हू ना जाना, ना किन्हू जाना, प्रभ को प्रभ न किन्हू जाना। ते फिर उन्होंने की किया ते कहे करो हमारी पूजा। इन्होंने कहा कहते साडी पूजा करो, परमात्मा नूं छड्डो, ओहदा काम कहते खत्म हो गया। उन्हें कहते सानू भेजना सी, पैदा करना सी, असीं आ गए, हुण तुसीं साडी पूजा करो। ते कहे करो हमारी पूजा, हम बिन अवर न ठाकुर दूजा। साडे तो बगैर कोई होर कहते परमात्मा कहते इस धरती ते नहीं है। अधिक परपंच दिखाए सबन कह, आप यह ब्रह्म कहाए। अगे महाराज कहते इन्हां ते अपने आप को कहते ब्रह्मा कहा दिता, परमात्मा कहा दिता। अगे महाराज कहते भंजन गड़न समरथ सदा प्रभ। एक वचन असीं पढ़ते हैं चौपाई सात विच, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये जेड़े तिन्ने हन ब्रह्मा महेश ते विष्णु, ये तीनों ही काल दे विच कहते फसे हुए हैं।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਰਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਰ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ, ਸੋ ਕਿਮ ਜਾਤ ਗਨਾਇਓ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ, ਸੋ ਕਿਮ ਜਾਤ ਗਨਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਸਾਕੂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਸਾਕੂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਗਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਾ ਕਰੇ ਪਛਮ ਕੀ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ। ਆਪ ਜੈਤ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਨਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਤੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਕੇ ਅਸਕੋ, ਕਾਏ ਬਚਾਏ ਨਾ ਆਇਓ। ਤਾਤੇ ਸਰਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਕਾਏ ਬਚਾਏ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ ਸੁਨ ਜੜ। ਉਹ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ ਸੁਨ ਜੜ, ਆਪ ਡੁੱਬਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਗੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ ਸੁਨਜੜ, ਆਪ ਡੁੱਬਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਛੁਟੋ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਬ ਹੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਛੁਟੋ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਬ ਹੀ। ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਣਾ ਹੂੰ ਣਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
छुटो काल फास्ते तब ही गहो शरण जगतागर। उस परिपूर्ण परमात्मा की शरण में आओ। जदों उस परमात्मा की शरण में आवांगे ना तो फिर ये जिहड़ी मौत का डर है, ये जिहड़े जमदूत है, इन्हां तो साडा छुटकारा जिहड़ा हो जाएगा। कल भी आपां शरण दे जिहड़े प्रमाण लए सी, एक प्रमाण लैके सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाहे हमारी। और न सूझे दूजी ठहर पाए गहे, जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे, मत एक ना मानियो। महाराज कहते, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गहेगी लाजस गोविंद दास तुहार। इन्नियां को बेटियां प्रवान करनियां। कल्लू कारे दे दिन चल रहे हैं 1984 के, जो हिंदुस्तान की ना शुक्र सरकार ने सिखां दे उपर कहर ढाया, उस दी विचार आपां खुल के 5 तरीक और 6 तरीक 5 जून ते 6 जून के 2 दिन के दीवाना दे विच लवांगे। बेनती है जिन्ने भी मेरे वीर, जिन्ने भी मेरे भैन ते भरा जो दास को फेसबुक ते सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन्होंने बेनती है अपने होर भी साथियों को दस्यो। 5 ते 6 जून की जिहड़ी विचार होगी वो सिर्फ ते सिर्फ 1984 का घल्लूघारा जो दरबार साहिब की धरती ते होया, उस दे विच आपां खुल के विचार करांगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।